और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच में वचन की सेवा करने के लिए जो इस मौका परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में दिया है। I also want to extend my gratitude and reverence to the pastor of the church, Pastor Suresh, who invited me to be a part of this meeting. पास्टर सुरेश को ये मैं आज सुबह के समय धन्यवाद He told that this speaker doesn't need a word of introduction. और उन्होंने कहा कि इस प्रचारक को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। And I praise God that all of you know me without an introduction. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परिचय किए बगैर आप सब मुझे जानते हैं। It is a beautiful opportunity to see all of you in an online service. और एक अच्छा मौका है, सौभाग्य है कि मैं आप सबको इस कोविड-19 ने हमें टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा गहराई में सीखने के लिए और परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मौका दिया है। And I thank the Almighty God for His protection upon every one of you in the church. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि वो आप सबको कलीसिया के सारे भाई बहनों को संभाल के रखता है। And it is my opportunity and the privilege to have Brother Abraham Samuel translate for me this morning. ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि भाई इब्राहिम सैमुअल आज सुबह के समय मुझे मेरे बातों को ट्रांसलेट कर रहा है। Today, for a short time meditation, as we turn our attention to the Word of God. आज कुछ समय के मनन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान को लगाएंगे। I want to begin with a small story. एक छोटी कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा। There was once upon a time there was a boy and a father who were working in the farm. एक समय में एक बेटा और पिता दोनों एक खेत में काम कर रहे थे। And the day went by and the father was able to complete his task in the farm. और कुछ दिनों बीत गए और पिता ने अपने उस खेत में अपना काम पूरा कर सका। And he was using a truck which had a bumper behind on that truck. और वहाँ एक बम्पर उस खेत में था। No, he was using a truck to mine the field which had a bumper behind. और वहाँ वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था खेत में जिसका पीछे एक बम्पर था। And this small boy was standing on that bumper as his father was driving that truck. और जब वो खेत के उस बात को जब उसका पिता चला रहा था तो ये बेटा उस बम्पर के ऊपर खड़ा था। And during that time, once he had finished his work, he forgot to check where his son was. अपना काम खत्म करने के बाद पिता मुड़ के देखा कि बेटा कहाँ खड़ा है। No, he forgot to check where his son was. वो भूल गया कि अपना बेटा कहाँ खड़ा है करके देखने के लिए। And as soon as he finished his work, he started the truck and he started driving to go out. और अपना काम खत्म करने के बाद अपना ट्रक शुरू करके वो लौटने का शुरू किया। And no sooner did he start the truck, the boy from behind started shouting loudly, "Dad, please stop the truck." और जैसे ही पिता ने उस ट्रक शुरू किया चलाने के लिए तब पीछे से उस बेटे का आवाज आया कि पिता रोको, गाड़ी शुरू नहीं करो। But the father was unable to listen to the voice of the son. मगर उस बेटे का आवाज पिता तक नहीं पहुंचा। But after the boy was hanging on the bumper behind as the father was driving. और जैसे ही पिता उस गाड़ी को चला रहा था तो बेटा उस पीछे बम्पर पर लटक रहा था। And after going little further, the father remembered, where is the boy? थोड़ा आगे तक चलाने के बाद पिता को बेटे के बारे में याद आया। And at that time, the father stopped the truck and he came back. तुरंत उसने अपने गाड़ी रोककर पीछे की ओर मुड़ के देखा। No, he came out of his truck and came back. और वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के पीछे के भाग की ओर आया। And as soon as he saw his boy was hanging on the bumper. और उसने देखा कि अपना बेटा गाड़ी के पिछले भाग में बम्पर में लटका हुआ था। But thankfully, he did not sustain any injuries, as such little minor bruises only were there. मगर कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, थोड़े से चोटें लगकर वो बच गया। And the father asked the boy, "How are you?" पिता ने बेटे से पूछा कि तू कैसा है? And the boy said, "Dad, I'm okay." बेटे ने कहा कि हाँ पिता, मैं सही हूँ।
The father told the son, you could have called and you could have told me to stop the truck. Why? Or you could have left your hold from the truck bumper. Why did you hang on the bumper? पिता ने बेटे से कहा कि तू बुलाकर मुझे बता सकता था, तूने इस बम्पर के पीछे क्यों अपने आप को लटक के खड़ा रहा? You could have left your hand so that you could have left the hold from the bumper. तू उस बम्पर के ऊपर से अपना पकड़ छोड़कर तू नीचे रह सकता था, क्यों उस पर लटक के खड़ा था? And the answer given by the boy was like this. उस बेटे ने इस प्रकार जवाब दिया, That the reason I did not leave my hands from the bumper. ये कारण ये था कि मैंने उस बम्पर से मेरे हाथों को इसलिए नहीं छोड़ा, Because I knew that you will listen to my cry. क्योंकि मैं जानता था कि मेरे उस पुकार को आप सुनोगे, And when you stop to listen to my cry, you will definitely come to my help. और मैं जानता था कि मेरे पुकार जब आपके कानों में आएगी तब उस गाड़ी को रोककर आप मुझे बचाने वापस आओगे। To all of you who are listening to me this morning, I want to encourage you. Our God is a God who is listening to our cry. आज सुबह के समय मेरे बातों को सुनने वाले सबको मैं प्रयोजन देना चाहता, उस बात को दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि एक परमेश्वर जीवित है जो हमारे उस प्रार्थना को सुन रहा है। He will not always turn a deaf ear to you and me. वो कभी भी आपके प्रार्थनाओं के सामने या मेरे प्रार्थनाओं के सामने अपने कानों को बंद नहीं रखेगा। These days, our time and situations are not so favorable for all of us. हमारे परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है, But still, at that time also, the Father in heaven is listening to your cry. मगर इसके बीच में भी मैं कहता हूं कि स्वर्ग परमेश्वर आपके उस रोने की आवाज को सुन रहा है। We are in a situation where we do not know how many people are going to stand by our side. हम इस प्रकार की परिस्थिति में हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे प्रतिकूल अवस्थाओं में हमारे नजदीक कौन कौन खड़ा रहेगा। But that God is the one who says, I will be with you. मगर उस परमेश्वर एक है जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। In the book of Exodus chapter 3 verses 12. निर्गमन 3:12, And that was the God says, God said, I will be with you. वहां कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। This God is the one who is promising you and me that I will be with you no matter what the circumstances may come. ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो मगर मैं तेरे संग रहूंगा। And that promise is more than sufficient for each one of us to go through this pandemic situation. और इस प्रकार की महामारी के बीच में से चलने के लिए परमेश्वर का इस वायदा हम सब के लिए काफी है। When we know our God, He is true and faithful to lead each one of us. और हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमारे लिए सच्चा और विश्वासी योग्य परमेश्वर है। And when He will lead you, He will take you to the next level of your life. वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे जिंदगी के अगले श्रेणी की ओर हमें वो ले चलता है। He's the same God who is the creator of the universe. वो वही परमेश्वर है जो इस संसार को रचा है। And He is the same God who will divide the Red Sea for you and me. और वही परमेश्वर है जो हमारे लिए लाल समुद्र को दो भाग करता है। He is the same God who will take away all the walls ahead of us. और वही परमेश्वर है जो हमारे सामने जितने भी दीवार है उसे वो हटा देगा। No matter where you and me we call Him, He is a God who will definitely listen to our prayer. ये नहीं अहमियत रखता है कि मैं और आप कहाँ हैं, मगर हम जहां पर भी रहकर उसको पुकारे वो हमारे बातों को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। His promise is, I will be with you. वो वायदा करता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। Still, as a human being, many times we ask a question to God, where are you, O Lord? मनुष्य होने के नाते हमारे परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर आप कहाँ हो? Where are you when it hurts me? आप कहाँ हो जब मुझे इस दर्द की अवस्थाओं में से मैं गुजर रहा हूँ? Many times as I go through, I see nobody who is coming to help me. अक्सर मैं जब इस दर्द की अवस्थाओं से गुजरता हूँ तो मेरी सहायता करने के लिए कोई मुझे दिखता नहीं है। So today I want to tell you, He is a God who will be with you at all times. आज सुबह के समय में आपसे कहता हूँ कि यही परमेश्वर है जो सदैव आपके साथ रहता है। He will not forget you. He will not dismay you, or neither He will disappoint you. वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, ना कभी भी आपको त्यागेगा, ना कभी भी आपको निराश करेगा। Today I want to encourage each and every one of you that you are going to be a conqueror. आज सुबह के समय में आप सबको इस प्रकार उत्तेजन देना चाहता हूं कि आप सब इस प्रकार सामर्थ्य रहेंगे। When God said, I will be with you, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं आपके संग रहूंगा, that means we have to be with Him also. उसका अर्थ यह है कि हमें भी उसके संग रहना है।
He's the same God who was walking with Enoch. और वही परमेश्वर है जो इनोक के साथ चलता था, And every day Enoch and God had a wonderful, beautiful fellowship. और हर जगह इनोक एक अच्छा संगति को परमेश्वर के साथ पाया। This is the same relation that God is expecting you and me to have with Him. इस प्रकार की एक संबंध परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है। We might think, where is God? But He wants to tell you and me that I am always there with you. हम परमेश्वर के संग नहीं होंगे, मगर परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैं आपके साथ रहता हूँ। In the book of Deuteronomy chapter 31 verses 23. व्यवस्था विवरण 31 का 23। The verse says, the Lord gave this command to Joshua son of Nun. वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने नून का पुत्र योशुआ से इस व्यवस्था को दिया, Be strong and courageous. तू दृढ़ता के साथ और सामर्थ्य के साथ रहे। Our God is giving us a clear-cut message. He's saying, be strong and courageous. और परमेश्वर हमें एक साफ संदेश दे रहा है कि तू दृढ़ता के साथ और सामर्थ्य के साथ खड़ा रहे। No matter what happens, you are called to be strong and courageous. हमारे जिंदगी में कोई भी आपत्ति क्यों ना आए, मगर परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम दृढ़ता के साथ सामर्थ्य के साथ खड़ा रहे। A weak person cannot be conqueror. एक जो कमजोर व्यक्ति है वो कभी भी विजेता नहीं बन सकता है। When the Lord is there with you, He's giving you a command that be strong and courageous. जब परमेश्वर आपके साथ रहता है तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम दृढ़ के साथ खड़ा रहो, युवाओं के साथ बना रखो। When God is giving you the courage, He expects you to grow from the good to the better. परमेश्वर जब आपको सामर्थ्य देता है तो वो चाहता है कि आप अच्छे बात से और बढ़कर रहे। And when you start obeying Him, you jump from the better to the best. और उसके बाद जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तब वो चाहता है कि आप अच्छे बात से और उत्तम अवस्थाओं की ओर आप बढ़ जाएं। You don't have to worry about the pandemic that is around you. आपके चारों ओर चलने वाली उस महामारी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। You don't have to be worried about the uncertainties that you are hearing and learning about. आपके चारों ओर चलने वाली उस अनिश्चिता बातों पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। All that the Lord is commanding you is be strong and courageous. परमेश्वर केवल आपसे यह कहता है कि हिवाव बांध लो और दृढ़ रहो। Today, this morning, as I begin my sermon, I want to keep 3 different points before you. सुबह के समय जब इस प्रचार को मैं शुरू करता हूं तो आपके सामने 3 बातों को रखना चाहूंगा। I title my sermon as the divine companionship. और परमेश्वर इस प्रचार का मैं जो विषय है परमेश्वर के उस अच्छे संबंध के बारे में कहना चाहूंगा। Divine companionship is one that can come only from God. और इस प्रकार की एक जो एक संबंध है वो केवल परमेश्वर की ओर से आ सकती है। The Bible says your father and mother may forsake you. परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका माता और पिता आपको भूल सकता है। Your brother or your sister may turn against you. आपके भाई और बहन आपके विरुद्ध काम कर सकता है। Children might turn against you. बच्चे आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं। Your parents might turn against you, children. आपके माता पिता हो सकता है बच्चों के विरुद्ध काम कर सकते होंगे। But if you have the divine companionship of God, मगर अगर आप उस परमेश्वर के साथ एक दिव्य साहचर्य में रहेंगे तो I want to tell you, no matter what it is, you will go through it. मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी क्यों ना आए मगर आप उस बातों को उस समस्याओं के पार करोगे। You are definitely not going to perish here, but you are going to the next level. आप यहाँ नाश नहीं होंगे मगर अगला एक श्रेणी की ओर आपको प्रभु ले जाएगा। This title as an introduction, the first point that I want to keep before you this morning. इस विषय के संबंध में पहला बात आपसे मैं इस सुबह के समय बताना चाहूंगा। The promise of the divine companionship. इस दिव्य साहचर्य का वायदा। The promise of God upon your life. परमेश्वर को आपके जिंदगी के प्रति उसका वायदा। Exodus chapter 33 verses 14 and 15 says like this. निर्गमन 33 का 14 और 15 इस प्रकार कहता है। The Lord replied, my presence will go with you. परमेश्वर कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा And I will give you rest. और मैं तुझे विश्राम दूंगा। Today I want you all to affirm by faith saying my presence will go with you. आज सुबह के समय विश्वास के साथ आप कहें
कि परमेश्वर का उस उपस्थिति मेरे साथ चलेगा। The Lord is confirming his promise to Moses and he's trying to tell him, Moses, don't be afraid. My presence will go with you. मूसा के साथ परमेश्वर अपना वायदा को दृढ़ के साथ कहता है कि तू डर नहीं, मेरे उपस्थिति तेरे साथ चलेगा। Not only will I come with you, but I will also give you rest. केवल मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, उतना ही नहीं, मगर मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम भी दूंगा। In the last 4 months, every one of us has been toiling and scared and anxious about our rest. पिछले 4 महीने से हम सब हमारे इस विश्राम के बारे में ज्यादा व्याकुल और चिंतित रहते थे। Every person has a different reason to be worried because of this pandemic. इस महामारी के कारण हर जनों के जिंदगी में इस प्रकार व्याकुल होने का एक कारण होता था। But the divine God is giving you a promise मगर जिस दिव्य परमेश्वर आपको एक वायदा दे रहा है, that he will go with you. वो आपके साथ चलेगा। When the presence of God is there with you, what more would you desire in your life? जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ चलता है तो इससे बढ़कर आप जिंदगी में और क्या चाहोगे? Moses was a person who had experienced God so close and face to face. मूसा एक ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर को एकदम करीबी मुखामुख चेहरे में चेहरा देखकर उस बातों को महसूस करता था। That's why this man of God in verses 15 he went to say like this, if your presence does not go with us, do not send us up from here. उस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर के साथ इस गति तक जाकर बात किया कि अगर आपका उपस्थिति चाहे तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। That is what you and me have to learn a lesson during these days and every day of our life. और आप और मैं इस महामारी के दिनों के बीच में इस एक अच्छा पाठ को हमारे जिंदगी में सीखना है। Like Moses, we have to tell God, मूसा के समान हमें परमेश्वर से कहना है, if your presence does not go with us, then don't send us out there. अगर आपका उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलता है तो हे परमेश्वर तू हमें यहाँ से नहीं भेजना। You are not a common person, but you are the child of God. आप एक आम व्यक्ति नहीं है, मगर आप परमेश्वर के संतान हैं। You are not going to live in this world like a common man, but you are going to live like a child of God. आप इस संसार में एक आम व्यक्ति के समान जिंदगी नहीं बिताना है, मगर आप परमेश्वर के संतान के समान जीना है। You will not be any XYZ in this world, but you will be known as a divine God's son and daughter. और आप इस संसार में एक बिना कोई निशाना के रहने वाले व्यक्ति नहीं है, मगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी के समान रहने वाले हैं। You have to make sure, like Moses, that who told, if your presence does not go with us, don't send us up from here. और मूसा हम देखते हैं कि परमेश्वर से कहता है कि अगर आपके उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलता है तो हमें यहाँ से नहीं भेजिएगा। And another verse in the book of Isaiah chapter 41 verses 10. और यशायाह 10 हम इस प्रकार देखते हैं। It says, so do not fear, for I am with you. वहाँ कहता है कि आप डरिए मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। God is giving you the promise and he's trying to tell you and me, my child, do not be afraid, do not be fearful about anything. परमेश्वर अपना वायदा आपको पहुंचा कर कहता है कि हे मेरे संतान तू डर नहीं, किसी के बारे में निराश नहीं हो, For I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। That is the promise that God is giving you and me this morning, even as we come and meditate on the word of God. God wants to tell, do not be afraid, for I am there with you. आज सुबह के समय जब हम परमेश्वर के सन्मुख में आकर उसके वचन से मनन करते हैं तो परमेश्वर बड़ी साफ रीति से अपना वायदा आपके बीच में रखता है कि आप मत डरना क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। Further in that same verse, he says, I will strengthen you and I will help you. और उसी वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। I will uphold you with my righteous right hand. अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। God is doing everything, every promise God is giving to you. हर परमेश्वर ने हर एक वायदा को आपको दिया हुआ है, आपके लिए हर काम वो कर रहा है। You might be thinking your problem, your difficulties, your situations, your work, your personal life, anything can be a problem, but God's promise is over and above all that. आपके जिंदगी में अनेक समस्याओं के बीच में से गुजर रहेंगे, मगर परमेश्वर की वायदा जो है वो सारे समस्याओं के उस पार है, उससे बढ़कर है। Isaiah chapter 43 verses 2, one more verse I bring to you. 43 यशायाह 43 का 2 में और एक बार मैं आपसे एक वचन पढ़ता हूँ। What is the verse reading there? वहाँ क्या लिखा है? When you pass through the water,
जब आप जल से होकर जाए, I will be with you. मैं तेरे संग संग रहूंगा। When you pass through the rivers, they will not sweep over you. और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। When you walk through the fire, you will not be burned. जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, The flames will not set you ablaze. और ना उसकी लो तुझे जला सकेगी। This is the promise of the divine companionship of God. यह परमेश्वर की उस दिव्य साचार्य का वायदाएं हैं। No matter what you may say, God says, I am above and over that. आप कुछ भी समस्या में से गुजर रहे होंगे, मगर परमेश्वर कहता है कि उन सारे समस्याओं से बढ़कर मैं हूं। All the doctors, all the scientists, they are struggling and working hard to find a medication for coronavirus. सारे डॉक्टर, सारे वैज्ञानिक इस कोरोना के दवाई ढूंढने में परिश्रम कर रहे हैं, They all want to find out what could break this virus. और वे सब खोज रहे हैं कि इस वायरस को किस प्रकार खत्म कर सकते हैं। One after the other, they are trying different inventions. एक के पीछे एक लगातार वे कोशिश कर रहे हैं, But God has to tell you, my presence will go with you. मगर परमेश्वर कहता है कि मेरा उपस्थिति आपके साथ चलेगी। Whether you go through the waters, whether you go through the rivers, or whether you go through the fire, His presence will be there with you. आप उस आग के अंदर से या नदी के अंदर से या पानी के अंदर से चलने पर भी परमेश्वर कहता है कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ चलेगी। For a child of God, this can be an affirmation of their faith that they can tell, even if I go through the pandemic COVID-19 time also, the presence of God will not leave me and go. और ये एक परमेश्वर के संतान के लिए एक दृढ़ता की संदेश है कि परमेश्वर इस आंधी, इस महामारी के बीच में से चलूंगा, परमेश्वर की मेरे साथ रहेगी। And this promise is with a condition. और ये जो वायदा है इसका एक शर्त भी है। The condition is found in the book of 2 Chronicles chapter 15 verses 2. और दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसकी दूसरी वचन में उस शर्त को हम देख सकते हैं। It says like this, the Lord is with you when you are with Him. और इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर आपके साथ है, जब आप उसके साथ रहोगे, If you seek Him, He will be found by you. और जब आप उसको खोजोगे तब वो आपको मिलेगा। But the next completing sentence is very difficult for each and every one of us. और उस वचन इस प्रकार अंत होता है जो हमारे लिए वो बहुत तकलीफ वाली बात है। But if you forsake Him, He will forsake you. और वो अगर आप उन्हें भूल जाओगे तो वो आपको भी भूल जाएगा। My dear brothers and sisters, the promise of the divine companionship is just with one condition to you and me. और हे परमेश्वर के संतानों, उस दिव्य सच्चाई का एक जो पहला वायदा है वो आगे और मेरे बगैर पूरा नहीं होता है। The Lord is with you if you are with Him. परमेश्वर आपके साथ है अगर आप उसके साथ हो तो। You and me, we have to be very careful that we have the Lord with us at all times. आपको और मेरे को बहुत ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग सदैव रहना चाहिए। Only because of this pandemic period of time, many people have grown closer to God. और इस महामारी के बीच में अनेक जन देखिए परमेश्वर के नजदीक आए हैं। And everybody has started coming on the knees and praying to God. और हम भी मैं भी समझता हूँ कि हम परमेश्वर के नजदीक आकर घुटनों में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। But we have to learn that not only because of a pandemic, but at all times I will be with the Lord. हम इस बात को सीखना भी है कि इस परिस्थितियों के बीच में, महामारियों के बीच में नहीं, मगर सदैव मैं परमेश्वर के उस उपस्थिति को महसूस करता हूँ। A person who is with the Lord at all times, for them the promise of the divine companionship is there. और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सदैव रहता है उसके लिए परमेश्वर के उस दिव्य सच्चाई का वायदाएं है। Psalms 91 verses 14 to 16 says like this. 91 भजन संगीता उसके 14 और 15वीं वचन इस प्रकार कहता है, Because He has set His love upon me. परमेश्वर ने अपने उस बादल को मेरे ऊपर रखा है, Therefore will I deliver him. और इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, I will set him on high. और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, Because he has known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। There is a condition. God is saying, because He has set His love upon me. वहां देखिए एक शर्त है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है।
Then whatever the verses 15 says, I will answer him, I will be with him in trouble, I will deliver him, and I will honor him. और उसका जवाब देखिए 15 अध्याय में है कि जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। And finally, the chapter closes with verses 16 saying, with long life will I satisfy him. और आखिरी में देखिए उस अध्याय इस वचन से खत्म होता है 16वें वचन में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। The promise of the divine companionship. उस दिव्य सहचारी का वायदा, He will be there with you. वो आपके संग रहेगा, You have to be with him. मगर आपको भी उसके साथ रहना जरूरी है। Moving to the second point. उसके दूसरे भाग की ओर मैं ले चलूंगा, The partnership of the divine companionship. उस दिव्य सहचारी का पार्टनरशिप। We are all individuals who know this term partnership. हम सारे इस शब्द को बराबर जानते हैं, भागीदार। You know that partnership means an equal giving in both the contexts. और भागीदार रहना या साथी रहना, उसका अर्थ यह है कि दोनों को एकदम बराबर हिस्सा देना है। God is giving a partnership of a divine companion to you and me. परमेश्वर हमें उस दिव्य सहचारी में भागी बना रहा है। One example from the Old Testament is found in the book of Genesis chapter 39. और उत्पत्ति 39 में हम एक उदाहरण को देख सकते हैं। This is the story about Joseph in the Old Testament. यूसुफ का, उस पुराने नियम में यूसुफ के बारे में एक उदाहरण ये है। In verses 39 verses 2 it says the Lord was with Joseph. और उस दूसरी वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर उसके संग था। And so that he prospered. और इसके वजह से वो भाग्यवान पुरुष हो गया। Remember, Joseph came as a slave. ध्यान दीजिए, यूसुफ जो है वो एक गुलाम के रूप में आया था। But now he has been a person who is rich man in that land. मगर देखिए उस देश में अभी वो एकदम धनवान बन गया। He is a person who is in authority. उसके पास अधिकार है। He is a person whose commands are followed by different people. और वो एक ऐसे व्यक्ति है जिसके अधिकारों को, जिसके नियमों को लोग मानते हैं। Why did it happen so? Why did it happen like that? इस प्रकार क्यों हुआ? The Bible says the Lord was with Joseph. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। My dear brothers and sisters, this morning I want to tell you the partnership of divine companionship. The Lord is telling you and me that like Joseph was with me, you also need to be with me. आज सुबह के समय मेरे प्यारे भाई बहनों, उस दिव्य सहचार्य में परमेश्वर उस साझेदारी के बारे में कहता है कि परमेश्वर जिस प्रकार यूसुफ के साथ था, उसी प्रकार हमारे साथ भी रहना चाहता है। Maybe your life is in a situation where you feel that you are in the dungeon. आप इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि आप बड़े खड्डे में गिरे हैं। Maybe you feel that your life is in the den of lions. आप इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि आप सिंह के कुंड में पड़े हैं। You might assume yourself like a Paul who was on the island of Patmos, surrounded by so many people who were giving a judgment about his life. उस पौल के समान उस द्वीप में फंसे होंगे जहां लोग उसको अनेक गलतियों के बारे में, उस के बारे में इल्जाम लगा रहे हैं। उस प्रकार की समस्या से आप गुजर रहे होंगे। But if you are there with the Lord, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो Lord is saying, I am a partner with you. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा। In your sufferings, I am there with you. तेरे तकलीफों के बीच में से मैं तेरे साथ रहूंगा। Trials, in your troubles, in your tests, I am there with you. तेरे परखे जाने की अवस्थाओं में, तेरे तकलीफों के बीच में मैं तेरे साथ साझेदारी देकर खड़ा रहूंगा। The reason I am coming with you is to lift you out of there or to make you prosperous. और मैं तेरे साथ इसलिए चल रहा हूं कि मैं तुझे उठाकर तुझे सफल देने के लिए चल रहा हूं। Where you don't see a word of hope, there God is telling, I am there with you. I am a partner with you in this. जहां आपको एक आशा की किरण नजर नहीं आती है, वहां परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ तेरे साझेदार बनकर चल रहा हूं। Again, another verse I want to bring from the book of 2 Chronicles chapter 26 verses 5. दूसरा इतिहास 26वीं अध्याय उसकी 5वीं वचन आपके ध्यान में ले आना चाहूंगा। Verse it speaks about Uzziah. वहां देखिए एक बात कह रहा है।
Uzziah is a king in that land. उसिया उस देश का राजा है। In chapter 26 verses 5 it says he sought God in the days of Zechariah. और जकरिया के दिनों में उन्होंने परमेश्वर को खोजा करके वहां लिखा है। Who had an understanding in the visions of God. और वो परमेश्वर के उस दर्शनों के बारे में बातें समझता था। And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. और जब तक वो परमेश्वर का खोज में लगा रहा तब तक यहोवा ने उसे भाग्यवान बनाता रहा। As long as you sought the Lord, God's prosperity will be upon you. जब तक परमेश्वर को आप खोजते रहोगे तब तक परमेश्वर का उस भाग्य बात आपके ऊपर रहेगा। As long as you sought the Lord, the protection of the Lord will be covering you. जब तक आप परमेश्वर को खोजते रहोगे तब तक परमेश्वर आपको संभालते रहेगा। But we have to be very careful. मगर आप बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। And the same Uzziah, it is written in verses 16 to 20 in the same chapter. उसी अध्याय के 16वीं से लेके आगे 20वीं वचन पर इस प्रकार लिखा है। When he was strong, जब वो सामर्थी था, his heart was lifted up to his destruction. तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ गया। For he transgressed against the Lord his God. और अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। My dear brothers and sisters, how many times have you and me experienced the blessing from God? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उस आशीषों को कितने बार पाया है। In spite of experiencing all the blessings, we have still transgressed before him. उसके आशीषों को पाने के बावजूद हमने उससे विश्वासघात किया है। We have been sometimes like the life of Uzziah, we have lived our life. और उसिया के जिंदगी के समान हम भी हमारे जिंदगी में हमारे खुद के मर्जी के अनुसार किए हैं। Today the partnership of the divine companionship is coming to you. उस दिव्य सहचारी के साझेदारी को आपके अंदर आज महसूस करिए। Learned in the first point as the promise. आपके परमेश्वर उस वायदा को आपके पास दे रहा है। Now in the second point we are looking into the partnership with the divine companionship. और दूसरी बात आज जो हम सीख रहे हैं उस दिव्य सहचारी के अंदर परमेश्वर की साझेदारी। This person who is going to have a partnership with God, how he or she is going to live their life. जो परमेश्वर के साथ अपने साझेदारी निभाता है वो अपने जिंदगी में परमेश्वर की उस दिव्यता को किस प्रकार पहचानेगा। Hebrews chapter 10 verses 38 says like this. इब्रानी पत्री 10 का 38 इस प्रकार कहता है, But my righteous one will live by faith. मगर मेरा धर्मी जो है वो विश्वास में जिएगा। Yes, my righteous one will live by faith. मेरा धर्मी जन विश्वास में जिएगा। My dear brothers and sisters, we don't live because of our academics, because of our professionalism, not because of our anything that we have held in our life. हमारे अंदर जो खूबी है, हमारी विद्या या हमारी इस प्रकार की कोई भी बातों से हम जीवित नहीं रहते हैं। For the partnership of the divine companion to come upon your life, the Lord is saying that my righteous will live by faith. अगर उस दिव्य सहचारी के साझेदारी में परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी उस विश्वास से जीवित रहेगा। You and me, we live by faith. We are acting God's life in and through us in this world. और हम और मैं और आप उस परमेश्वर के विश्वास पर इस संसार में जीवित रहेंगे। That is where the psalmist in Psalms 46 verses 1 to 5, he calls out and he tells you and me like this. 46वीं भजन संहिता में भजन संहिता इस प्रकार पुकार के 1 से 5 में कहता है, God is a refuge and strength, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, an ever-present help in times of trouble. संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक है। That's the reason why the psalmist says, therefore we will not fear. और इसलिए उस कारण अगला वचन में कहता है कि इस कारण हमें कोई भय नहीं है। Verses 5, the psalmist is writing like this, God is in the midst of her. उसकी 5वीं वचन में भजन संहिता रचने वाला कहता है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है। And then it says, God shall help her. और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। My righteous will live by faith. That's what Hebrews says. और इब्रानियों इस प्रकार कहता है कि मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। So all of you who would be listening to me, आज मेरे वचनों को सुनने वाले सारे जन, maybe you are a person who has suffered a loss during this pandemic. हो सकता है इस महामारी के बीच में आपको नुकसान हुआ होगा, A loss which is irrevocable. इस प्रकार की नुकसान आपने सहन किया होगा जो कभी भी आप फायदे में नहीं आ सकते होंगे, A loss which can never be turned back to a good time. और एक अच्छे दिन नहीं दिख सकता। इस प्रकार की एक नुकसान आपने सहन किया होगा। Your paychecks would have been affected because of the pandemic.
और अनेक लोग इस प्रकार के इस महामारी के बीच में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। Your salaries would have been affected because of this pandemic. आपके वेतन इस महामारी के वजह से कम किया गया होगा। But I want to tell you, the righteous will live by faith. मगर मैं आपसे कहता हूं कि धर्मी जन विश्वास पर जीवित रहेंगे। You don't have to be worried what is going to take place in the future. आपको भविष्य के बारे में सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं है। But the Bible says, my righteous one will live by faith. अगर मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। The partnership of the divine companionship also comes with a condition. उस दिव्य सहचारी के साझेदारी एक शर्त के साथ आता है। Amos chapter 3 verses 3, it says like this. आमोस 3:3 में इस प्रकार कहता है, Can two walk together except they be agreed? और यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, Can they walk together? तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? That is what God is asking you and me for a partnership. We need to come into an agreement with God. और इसी बात को परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि एक साझेदारी के लिए हमें मिलकर आना है। You and me, we need to have the divine partnership with our God, so that we are coming into that solemn agreement with Him. और मैं और आप उस परमेश्वर के दिव्य सहचार्य में भागीदार होना है, ताकि हम उसके उस दिव्य वायदाओं को हमारे जिंदगी में पूरा कर पाए। For you to have the divine companionship in your life, और आपको उस दिव्य साझेदारी को आपके जिंदगी में महसूस करने के लिए first is you have the promise. आपके पास सबसे पहला एक वायदा है। Second, you have the partnershप. दूसरा, आपके पास वो साझेदारी है। And the third you have is the purpose of divine companionship. और तीसरा, आपका उस दिव्य सहचारी का एक उद्देश्य है। Many times God does certain things because of a purpose that He has planned for you and me. और अक्सर हम उस परमेश्वर को हमारे जिंदगी में जो उद्देश्य है उस बात को हम पहचान नहीं पाते हैं। Genesis 28 verses 15. Genesis 28:15. उत्पत्ति 28:15। And behold, I am with thee, मैं आपके साथ हूँ and will keep thee in all places whither thou goest, और जहां कहीं भी तू जाए वहां and will bring thee again into this land. तेरी रक्षा कर कर तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, For I will not leave thee क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा until that which I have spoken to thee of. जब तक पूरा ना कर लूं जो कुछ मैंने तुझसे कहा है। Can you claim this verse as a promise upon your life? क्या इस वचन को आपके जिंदगी में एक वायदा के रूप में आप स्वीकार कर पाओगे? God is revealing His purpose. I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. परमेश्वर उसके जिंदगी के उस उद्देश्य को आपको प्रकट कर रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे उस बात को तेरे जिंदगी में पूरा नहीं होता है। How many promises of God do you remember in your life? आपके जिंदगी में परमेश्वर ने किए हुए कितने वायदाओं को आज सुबह के समय याद करते हैं? And God says, I will not leave you until I have done what I have promised for you. मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा करके परमेश्वर कहता है। So brothers and sisters, whatever your situation, whatever your life challenge might be, God says, I will not leave you. प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आपके परिस्थिति क्यों, He is not looking unto you as a loser, but He is looking unto you to be a conqueror. आपको वो एक हारा हुआ व्यक्ति के समान नहीं देखता है, मगर वो आपको एक विजेते के समान देखता है। Don't think yourself that, okay, because till now you did not suffer a life loss or any person's loss in your family, that's why you are a conqueror. आप ये नहीं समझिएगा आपकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं हुआ या कोई गुजर नहीं गया इसीलिए आप विजेता बनते हैं। But God is saying, I will not leave you until I have done what I have promised for you. परमेश्वर ये कहता है कि आपके जिंदगी में मेरे कहना पूरा नहीं हो तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। There was a promise given to one man in the Old Testament. एक व्यक्ति था पुराने नियम में जिसको परमेश्वर ने अपना वायदा किया। Joshua was a leader to lead the people of Israel into the promised land. जोशुआ एक नेता था, उस इस्राएल के प्रजा को उस वायदा के देश में ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था। Book of Joshua chapter 1 verses 5 we read like this. जोशुआ पहला अध्याय उसकी 5वीं वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life.
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। As I was with Moses, जैसे मैं मूसा के संग रहा, so I will be with you. वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, I will not fail thee, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा, or I will forsake thee. ना तुझे कभी छोड़ूंगा। This is the promise that God is giving to you and me this morning very clearly. आज सुबह के समय बड़ी साफ रीति से परमेश्वर आपको और मुझे अपना वायदा पहुंचा रहा है। You know this man about Joshua, इस योशुआ के बारे में जब हम देखते हैं, so confident, इतना दृढ़ के साथ, so much able to conquer, इतना विजेता के साथ, so much considerate about what God wanted him to be. और इतना परमेश्वर उसके बारे में क्या योजना रखता है उसके अनुसार चलने का एक भूख के साथ। The reason is because he knew what God had told for him. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उससे क्या बात किया है। He knew the purpose of the living Almighty God upon his life. उसके जिंदगी में उस जीवित परमेश्वर का उद्देश्य को वो बराबर जानता था। There shall not be any man who will be able to stand before thee. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। I will be with thee, I will not fail thee, nor will I forsake thee. और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे धोखा दूंगा। But there is a condition again in this purpose that God is giving to you and me. परमेश्वर आपको और मेरे को देने के उस उद्देश्य के अंदर एक और शर्त है। The condition is very clear. वो शर्त बड़ी साफ है। That is in verses 8 and 9 we can read like this. 8वीं और 9वीं वचन में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। This book of the law shall not depart Amen. out of thy mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। But thou shalt meditate upon it when? ग्लोरी, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। Yes, day and night you and me are called to meditate upon the book of the law. दिन और रात आपको और मेरे को बुलाया गया है कि हम इस परमेश्वर के पुस्तक से ध्यान करें। That thou mayest observe to do according to all that is written therein. और उसके अंदर लिखे हुए उन सारे बातों को आज्ञा मानने के लिए हमें बुलाया गया है। That is the purpose of God. यह परमेश्वर का उद्देश्य है। He wants to make you prosperous. ये आपको आशीष देना चाहता है। That's what that verse says in verses 8 ending. It says, "For then thou shalt make thy way prosperous." और उसके बाद उधर देखिए, परमेश्वर आपको सफल होने देगा और तू प्रभावशाली होगा। Not just you will be prosperous, but you will be a successful person in your life. और केवल तू सफल नहीं होगा, मगर तू प्रभावशाली भी होगा। Year 2020 started off with a very good note. 2020 साल बड़ी अच्छी रीति से शुरू हुई थी। Nobody expected something of this sort will ever come in this year. किसी ने भी इस प्रकार की समस्याओं को सामना करेगा करके सोचा नहीं था। Today, because of this lockdown, because of the pandemic, because of all the difficulties that we are facing, आज इस दिनों में, इस महामारी के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में अनेक तकलीफ जो हम सहन कर रहे हैं, many people have forgotten their promise. एक जनों ने परमेश्वर के इस वायदा को भूल चुका है। Many people have forgotten the partnership with God. और अनेक जन परमेश्वर के साथ वो साझेदारी को भूल गया है। And many times we have also forgotten what is God's purpose upon our life. और अक्सर हम उस परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जिंदगी के बारे में जो है, उस बात पर भी हम भूल गए हैं। I want to encourage you. आपको दृढ़ता देना चाहता हूँ। Meditate on the book of the law. और परमेश्वर के उस वचन पर ध्यान दीजिए। And you will be prosperous, and not just be prosperous, but you will be successful. आप केवल सफल नहीं होंगे, आप प्रभावशाली भी होंगे। Verses 9 says, "Have not I commanded thee? और 9वीं वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Be strong and of a good courage." हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। Be strong and of a good courage. हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। Be not afraid, neither be thou dismayed. भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो। For the Lord thy God is with thee wherever thou goest. क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। Why you need the divine companion all the time with you? उस दिव्य साचार्य आपके जिंदगी में हर बार क्यों रहना चाहिए?
verse very clearly closes saying, God will be with you wherever you go. ये वचन बड़ी साफ रीति से कहता है कि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। God's purpose is very adequate, very specific, and very clear this morning to you and me. परमेश्वर का वायदा आपके जिंदगी में आपके लिए और मेरे लिए बड़ी साफ रीति से, बड़ी एकदम सुंदर रीति से प्रकट हो रहा है। He wants to live, he wants you to live with him. और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। Not just live with him, but he also wants to have that partnership with you and me. वो केवल ये नहीं चाहता है कि हम उसके साथ रहे, मगर वो चाहता है कि हम उसके साथ उस भागीदारी को निभाएं। A partnership that has some mutual agreement with God. उस एक इस प्रकार की भागीदारी जहां हम आपस में समझे। And finally, God has a purpose for your life. और आखिरी में देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक योजना को रखता है। You might tell me, Pastor Eugene, how is God's purpose going to make me prosperous and successful in this 2020? और मैं चाहता हूं कि इस 2020 साल में परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। You know, you might ask the question, how am I going to be prosperous and successful in this year and this time? हो सकता है आपके जिंदगी में इस सवाल गुजर रहा होगा कि इस साल में मैं किस प्रकार सफल रहूंगा। God is beyond the pandemic. मगर परमेश्वर देखिए इस महामारी से बढ़कर है। No disaster will come near your tent. और कोई भी विपत्ति आपके उस तंबू के नजदीक नहीं आएगा। You have to understand God has a plan for your life. और आज सुबह के समय आप इस बात को समझना है कि परमेश्वर को आपकी जिंदगी प्रति एक उद्देश्य है। That God will be with you wherever you go. और जहां पर भी आप जाओगे वहां परमेश्वर आपके संग रहेगा। I want to close my words this morning. आज मेरे बातों को यहाँ बंद करना चाहूंगा। We concentrated, we meditated on 3 different points. हमने 3 बातों पर आज सुबह के समय मनन किया है। The promise, परमेश्वर का वायदा, the partnership, उस परमेश्वर के साथ साझेदारी, and the purpose of a divine companionship. और उस दिव्य साहचर्य का उद्देश्य। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, do not be a person who is scared or who is worried during these days. आप इन दिनों में इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ना बने जो हर परिस्थितियों के बीच में डर से और भय बीत रहे। God knows when and how long we have to travel. परमेश्वर जानता है कि कब तक और कहां तक हमें यात्रा करना है। Let us pray, Lord, let your will be done. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तेरा इच्छा मेरे जिंदगी में पूरा हो जाए। Many times we may think my plans are withheld. अक्सर हम इस प्रकार विचार करते होंगे कि मेरे जो भी योजनाएं हैं वो सारे बातें रुक गई है। I want you to come to a time of prayer where you believe that the promise of God is there upon your life. और मैं इस प्रकार चाहता हूं कि आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ इतना नजदीक आ जाए कि आपके अंदर यकीन हो जाए कि परमेश्वर का उद्देश्य आपकी जिंदगी में है। I want you to understand that God is in a partnership relationship with you. और मैं आज सुबह के समय चाहूंगा कि आप इस बात को समझे कि परमेश्वर उस दिव्य साहचर्य में आपके साथ भागीदार है। In that partnership, He is asking an agreement with you. और उस भागीदारी में परमेश्वर आपसे एक समझौता करना चाहता है। And then finally, God is declaring to you a purpose. और आखिरी में परमेश्वर उसका उद्देश्य को बता रहा है। And in that purpose, God wants you to be prosperous and successful. और उस उद्देश्य में परमेश्वर चाहता है कि आप सफल रहे। Don't worry about what will happen tomorrow. कल के बारे में आप चिंतित ना रहे। Live for this day. आज के दिन आप जीवित रहे। No matter tomorrow may be a difficult situation, difficult moment, a difficult chance in your life. हो सकता है कल के दिन और प्रतिकूल आपके जिंदगी में बढ़ सकती है। Remember, the divine companionship of God is there with you. अगर इस बात को याद रखिएगा कि उस दिव्य साहचर्य आपके जिंदगी में हमेशा रहेगा। In your homes, wherever you are, can you close your eyes for a time of prayer? आज आपके घरों में जहां पर भी आप हो, आपके आंखों को जरा बंद करके हम प्रार्थना करें। Can you ask God, God, I am waiting for my promises to be fulfilled. हम परमेश्वर से पूछे कि हे परमेश्वर मेरे जिंदगी में आपके वायदाओं को पूरा होने का इंतजार मैं कर रहा हूँ। God, there are several promises which I remember which is yet to fulfill. हे परमेश्वर आपने मेरे जिंदगी में किए हुए अनेक वायदाओं को मैं याद करता हूँ और अभी वो पूरा होना बाकी है। There are so many things which are now questionable during these days. अनेक सवाल मेरे जिंदगी में इन दिनों में आ रहा है। But today I am coming into an agreement to have you as my partner in my life.
आज के सुबह के समय आपके साथ एक आपसी समझौते में एक साझेदारी बनाने के लिए आपके नजदीक आ रहा हूँ। Nothing is more important than you in my life. मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई और चीज को मैं नहीं चाहता हूँ। I know that you have a purpose for my life. और हे परमेश्वर धन्यवाद कि आप मेरे जिंदगी में एक उद्देश्य रखता है, And the purpose is for my better, for my future, and for making me successful. और मैं समझता हूँ कि उस उद्देश्य मेरे जिंदगी में मुझे सफल बनाने के लिए और मुझे प्रभावशाली बनाने के लिए है। For your purpose to be fulfilled, you are there with me wherever I go. और मेरे जिंदगी में आपके उस उद्देश्य पूरे होने के लिए मैं जहां पर भी जाता हूँ वहां तू मेरे संग रहता है। And you be that person who is today remembering and asking God for His protection to be upon your life. और आज मैं उस व्यक्ति बनना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वायदाओं को याद करते हुए उस परमेश्वर की उस संभालने वाली अवस्था को मेरी जिंदगी में आने के लिए उतरने के लिए देखना चाहता हूं। You are confident about God's promise. और परमेश्वर के उस वायदाओं के बारे में मैं दृढ़ पाना चाहता हूं। You are so sure about the partnership with God. और हम उस परमेश्वर के साथ आपसी समझौते में उस बातों को दृढ़ता के साथ पाना चाहता हूं। If you understand God's purpose upon your life, और अगर हम उस परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जिंदगी में समझते हैं तो I want all of you to pray like this. मैं चाहूंगा कि आप सब इस प्रकार प्रार्थना करें। The Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा Shepherd. Psalms 23. The Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है I shall not want. और मुझे कोई कमी नहीं होगी। He makes me to lie down in green pastures. वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। He leads me beside the still waters. वह मुझे सुखदायी जल में झरने के पास ले चलता है। He restores my soul. वह मेरे जी को ले जाता है। He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, I will fear no evil. तो भी हानि से ना डरूंगा, For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। You anoint my head with oil. तूने मेरे सिर पर तेल माला है। My cup runs over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Surely, निश्चय goodness and mercy shall follow me all the days of my life. भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। And I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। And all God's people said, और सारे परमेश्वर के जन मिलकर कहे Amen. आमेन। May the Lord bless each and every one of us through this day. आज सुबह के समय और पूरे दिन परमेश्वर आप सबको आशीष करते रहे। May you live to see God's promises in your life. और हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के उस उद्देश्य को हमारे जिंदगी में पूरे होते हुए देखेंगे। May you never forget that God is in a partnership with you. और हम कभी ना भूले कि परमेश्वर हमारे साथ एक दिव्य साझेदारी में है। And He will keep His purpose upon your life forever. और वो उसके उद्देश्य हमारे जिंदगी में पूरा करते ही रहेगा। Thank you for the time that all of you permitted me. आप सब मेरे बातों को सुना, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद